Hey everyone, welcome to Unique Academy. So we are back with the last lecture where we stopped was development, right? We already completed with polity, that was power sharing, right? I hope you have gone through the chapters, the videos basically for power sharing. Then we started with your economics, right? And economics we started with the first chapter, that is development. So last time we learned something about development and idea basic, right? So just give me a minute here. Okay, so last time we like somewhere stopped around sustainable development. So basically that was just a rough idea. Now let me know quickly, we'll revise what we learned last time. So take a piece of paper and let me know what's the difference between growth, or what exactly is growth and what is development, right? And how to achieve development, right? I'll allot you somewhere around 1 minute. And for the ones who have missed this, make sure you first go through the video. First watch the first video on development, right? Then proceed further from here. So chalo, quickly write what exactly is growth, what do you understand by development. Recall कीजिए, last time like we have gone through this. Chalo, be quick. So meanwhile rub this. So I presume अब तक तो you must have written something, right? So basically what should strike your mind? Growth was basically what? One dimensional, right? It focuses only on what? Profit, loss, output, productivity, etc. Okay, only one dimensional. And example of growth was what? See, G से growth है और G से GDP, right? So remember like this: G से growth, G से GDP. So GDP is what? An example of only growth, where only numerical factors are considered to gauge the progress or measure the progress, like profit, etc. Right? Now, what do you understand by development? See, in case there's a background noise when it comes to the surveillance or the announcement, so please avoid it, right? Okay. So when it comes to development, what do you understand by development? Development is multidimensional. Development is what? Multidimensional. How we can say this is multidimensional? Because apart from the economics, socio-eco-political factors are also considered. How we can say this? How we can say this? See here, like we consider about the money aspect, the happiness aspect, the satisfaction aspect, the enjoyment aspect. Every other things are being considered, and we consider what? Not only about the industries, also about the forests, humans, animals, wildlife, everything. So development means what? We focus on what? Harmony of everyone, harmony, peace for everyone. And how to achieve this? The way is through sustainable development. And what does the sustainable development is a theory where one should practice. But what's the basic difference between growth? Difference between growth and development is, see, development requires an additional funds for what? Research and development. But here, growth, the profit will be hampered if we focus on the development, right? If you focus on development, your profit will be cut down. Why? Because you require funds for your research and development. But this is ultimately needed for why? Why we should do this? For everyone's harmony. Because see, understand this, कि the consequences won't spare anyone. Everyone has to face it accordingly, right? It won't be biased कि ठीक है आपने कम किया तो आपको कम मारेंगे, or you will be less hampered. For example, when it comes to like the coronavirus, everyone is like even the developed countries, it has no barriers, right? It has penetrated everywhere. So that's the example of what? That it won't spare anyone the consequences. तो हमने क्या समझा? Growth क्या होता है? Then we understood what is development, and how to achieve development is through sustainable development, right? This is the way, this is the theory. और इसके लिए क्या लगेगा? सबसे पहले funds लगेगा, और funds देने के लिए everyone will be ready? No, they have to like cut down their profits, but it's a must, it's a need for a sustainable environment for everyone, right? तो चलो इतना समझा है, so let's proceed further. और who have missed this, make sure you go through the video again, right? चलो आगे बढ़ते हैं. और ये लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किए थे. सो देखो, हाउ टू यूज दिस. Now there must be a question, right? See, this is not needed exactly to like memorize this thing, but why I have incorporated this here? There's some reason to it. Just give me a minute here. See,
First of all, it's given by whom? UN. Is under the UN guidelines. So when CBSE has an like by default they ask there's one theme, it's called climate. On climate you can use this, then industries, right? So they will be like the questions are around these two themes, like the climate change is changing, over exploitation of resources, then industries as polluting the environment, how we can make it sustainable for everyone, or industry is the main reason for pollution, etc., etc. Then you can write the such things that to avoid such pollution, sustainable development should be the ultimate aim, where we should ensure this, that everyone gets the sustainable environment, oxygen to breathe, a pollution free environment, a better transport system, etc., etc. So there you can use this indirectly, right? So I guess this must be clear for you. So what you have to quote, sustainable development goals are given by whom? UN development, and the world is progressing, is heading towards achieving this, right? Even India is doing this. So इतना तो मालूम होना चाहिए, right? चलो तो करते हैं रब, एक ओवरव्यू है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना इन केस यू वांट टू, बट जस्ट एन ओवरव्यू इज इंपॉर्टेंट, राइट? डोंट मेमोराइज दिस. चलो, तो लास्ट टाइम वी स्टॉप्ड हियर, राइट? इनकम एंड द अदर गोल्स. सो क्विकली लेट मी नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम. इनकम क्या होता है भाई? लास्ट टाइम वी स्टडीड समथिंग, राइट? सी व्हाट वी सेड, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय with it is one factor on which our life depends, right? मनी से जो हम खरीद सकते हैं वो बस एक ही फैक्टर है. देन बट क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स टू. फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, डिड यू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट? नो, राइट? देयर आर नॉन मटेरियल थिंग्स बट यू नीड देम, राइट, इन योर लाइफ, राइट? द सेम वे कंसिडर योर मोबाइल फोन्स, योर गेम्स, right, or the games you play, or anything like PSP etc. PSP तो आप खरीद सकते हो ना. Can you purchase your parents? But you require both, or more importantly your parents you require more, right? Your friends etc. So this is talking about that money can't buy everything. What focus is more on the other goals. For example, if I say कि आप एक काम करो, I'll pay you somewhere around $1,000 for 1 hour. Okay, there's a scheme for $1,000 for 1 hour. ठीक है, but you have to stay for 1 hour in volcano. Will you go there? Environment friendly नहीं होगा, right? Like the fire coming out, the sulfur, carbon is more lethal than anything else. So will you go there? पैसा मिल रहा है, सिर्फ पैसे के लिए जाओगे क्या वहाँ पे? No, right? So other factors does matter. तो वो other factors क्या थे? Let me wrap this. The basic livelihood, the basic needs, right? A proper education, facilities, security, etc., etc. तो वहां पे और इंपॉर्टेंट क्या था? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, लाइक लीव शुड बी देयर, राइट? अब अंडरस्टैंड, यही मेन रीजन था फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट? ओके, हेंस डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट also about other important things in life. And what are the other important things? Your freedom, happiness, satisfaction, job security, like security, better education for family, health, right, etc. This factor should be considered. Or if you are getting these facilities, if you are getting less money compared to comparing to the facilities, then still people will survive, they will work there in spite of going somewhere else or commuting a long distance, right? Are we clear with this? What do you understand by income and what do you understand by other goals, right? अब देखो इसको यूज कैसे करना है. They at times they might confuse you कि despite being a very rich country, the happiness index is not that great. So justify this statement. But we say ना कि पैसा है तो सब कुछ आ जाता है. So तभी यहाँ पे ये चीज आपको काउंटर करनी है कि only money is not the factor on which you can gauge a country's progress, etc. So this is your what a fodder material for your further answers. We'll discuss few. So remember this कि money ही important नहीं है, other factors are too important. So like money at times, income at times less compared to the other factors when it comes to your family, right? Like for example any like typical Bollywood movie if you see, तो what they do, सोचो क्या करते हैं वो? They kidnap the family members, right? And they demand for what? Money. So वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई नहीं money दे दो मुझे, आप ले जाओ, हमारे family member को जरूरत नहीं है, right? Their preference is given to whom? The family member, right? They are charged XYZ amount, ले लो भाई, but return family member back, right? So that is the importance. कुछ याद नहीं आया तो बॉलीवुड याद करना, वहाँ पे ऐसे टिपिकल एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है? तो इसको रब करते हैं. नेक्स्ट टाइम आई विल इनकॉर्पोरेट दिस ईयर ताकि ज़्यादा याद रहे, ठीक है? तो आई अज्यूम कि अभी इतना तो क्लियर हुआ होगा. सो क्विकली इन शॉर्ट राइट इन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम्स एंड अदर गोल्स, राइट? इसको करते हैं रब.
In short, write in your piece of paper what do you understand by income and other goals. See, everything is not written here. कुछ मैंने verbally बोला होगा. So make sure in very concise and briefly you write this. I'll give you 1 minute. Do that. Meanwhile, I rub this. चलिए लिखिए. हाँ लिखिए. Take your time. 1 minute is enough. Right. तो चलो, आई एज्यूम कि यू मस्ट हैव रिटन, राइट, और मेक श्योर कि यू आर क्लियरिंग योर डाउट्स हियर इन देयर योरसेल्फ, राइट. अब आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, सम प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन रिजॉल्व योर डाउट्स. ठीक है, सो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो I'll try to make up some group somewhere, right? So where we can discuss the questions, etc. If your doubts anything, or in case we'll plan for some weekly like a meet over Zoom app something, right? ताकि कुछ issues हो तो you can resolve. Or second thing, see, most important part here to be communicated is, see social studies don't be an interpretation that you can memorize, or if you memorize you will score well, right? Only what you require your concepts. If your concepts are clear, the complete exam will be a cakewalk for you. So the best way to like understand this is ask your seniors. Okay, excuse me for this. Ask your seniors, right? In Unique, there are a number of seniors, you must be aware, right? Ask them how was the paper, how you can approach this, what is the best possible way. Okay, and if you get something fruitful, do let me know as well, right? So it's a collective way, right, how we can progress. But see, according to my experience and my past way how I taught children or students, the best way is clear your concept. If you memorize, there are a number of subjects, right, to memorize. So कुछ डरने वाला बात नहीं है. Just make sure you're following me rigorously. Whatever I'm saying, you're following it rigorously, and you will be through, right? Scoring in SST is a cakewalk for you, right? चलो, अब we'll stop here when it comes to this, and we'll get back to your main aim, that is development. चलो, so करते हैं clear. So you must have written income and other goals. चलो, अब बढ़ते हैं आगे. Now the best part. So understand it very. See, this is again the concept. So understand it very, like very carefully, right? This is visible, right? Okay. So how to compare different countries or states? Now comparison is there. वापस क्या हुआ? We want to measure. कंपेयर करना मतलब कुछ तो मेजर करना पड़ेगा ना. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज योर पेरेंट्स डू और एनी फैमिली मेंबर डू. सी, वो शर्मा जी का बेटा, अंडरस्टैंड, एस फॉर शर्मा जी, एंड यू आर पाटिल, पी. सो यू आर ऑलवेज कंपेयर विद शर्मा जी का बेटा, राइट? वाई? ही स्कोरिंग 90 एंड अबव एंड यू आर समवेयर अराउंड 80s. तो क्या हुआ? परसेंटेज कंपेयर हुआ ना, राइट? आर वी कंपेयरिंग योर हैबिट्स? आर वी कंपेयरिंग योर बिहेवियर? No, only what we are comparing, your percentage. तो percentage अगर compare करेंगे तो what we can call this? Quickly, what we can call this? Is it growth or development? चलिए बताइए. Yes, if you said growth, so you are right. If you are comparing only the percentage, then it's called the growth. अच्छा, तो फिर ये habit behavior जब हम calculate करेंगे इसको क्या बोलेंगे हम? Development. Right? अब in the same way, we have to measure the success of a country as well, right? So one of the parameter on which we gauge is GDP. ठीक है, तो उसको I'll rub this. See, first I'll let you know what is GDP. So we'll get back here. We want some space to write. अच्छा, ठीक है, we'll manage here. ठीक है, so I'll do some dark marker. Wait. This is visible, right? तो समझिए. Now first of all understand what is a GDP. Now basically if I say GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ये बस फुल फॉर्म है, इसको आंसर मत समझना, राइट? व्हेनेवर आई आस्क व्हाट इज जीडीपी, तो यू कम अप विद दिस लाइक द क्लीशे आंसर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी. दैट्स द फुल फॉर्म, दैट्स नॉट द एग्जैक्टली आंसर. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, दैट्स द फुल फॉर्म. अब इसका मतलब क्या होता है समझिए.
See, GDP of a country means is a parameter to gauge the economical, excuse me for this, okay, so GDP is a parameter to gauge the economical success or economical output, right? And how to gauge that? What is the formula? So understand, it's summation of, you understand this, right? Summation of all the goods and services produced in a particular country. Now the important part is during particular financial year or in one financial year or one year, right? So GDP is what? Summation means what? जितना भी हमने प्रोड्यूस किया है, फॉर एग्जांपल हमने एक साल में 10 पार्ले जी के बिस्किट बनाए, ठीक है, 200 फॉर एग्जांपल बर्बन, फिर 2 लेक्चर्स लिए एक साल में, ठीक है, तो इस सबका सम करेंगे हम, राइट, विल ऐड टुगेदर इन वन फाइनेंशियल ईयर, इतना हुआ, ये सब एक अज्यूम कर रहे हैं, राइट, वी आर अज्यूमिंग दिस, द नंबर्स आर फार मोर अहेड, आई शो यू द स्नैप्स कि कितना जीडीपी है हमारा, राइट, उनका सम अप करेंगे कोई भी कंट्री का इन वन पर्टिकुलर ईयर, फॉर अ कंट्री जो वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, आर वी क्लियर व्हाट इज जीडीपी? Summation of all the goods and services produced in one financial year in a particular country, right? So कहीं पे लिखिए इसको, right, what is GDP? टेक योर टाइम, आराम से लिखिए GDP क्या होता है. So चलो बी फास्ट, लिखिए आराम से. डन. सो आई अज्यूम कि इतने देर में तो लिख लिया होगा आराम से, राइट. इफ इन केस नहीं लिखा तो पॉज करना वीडियो, आराम से लिखना, राइट. सो आई क्लियर दिस फॉर द टाइम बीइंग. तो अब जीडीपी हमारा हुआ क्लियर. व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी क्या है भाई? समेशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ वन पर्टिकुलर ईयर और वन फाइनेंशियल ईयर, उसको लेंगे हम जीडीपी, राइट. अब बात समझो, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. पैसा कितना है कंट्री से वही गेज कर पाएंगे ना. फॉर एग्जाम्पल रिच एंड पुअर, हाउ वी डिसाइड कौन रिच है कौन पुअर है? बेस्ड ऑन द इनकम. दिस इज द ओनली पैरामीटर, राइट. फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल ग्रेड्स आर डिसाइडेड, A प्लस B प्लस C और D तो समझो बहुत रेयर होता है, पर फिर भी, राइट. तो हाउ आर दे बीन दिस बीन डन? बेस्ड ऑन व्हाट? योर मार्क्स. और कंट्री का कैसा होता है? बेस्ड ऑन द इनकम. इनकम मीन्स वापस मार्क्स, वापस मैथमेटिकल, वापस व्हाट? मैथमेटिकल नंबर, राइट. सो दिस कॉल्ड जीडीपी. और जीडीपी जी में आता है, जी से क्या आता है? ग्रोथ. तो जीडीपी इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट? ग्रोथ. इतना क्लियर होना चाहिए है बाय डिफॉल्ट. चलो नाउ विल रब दिस. अब समझते हैं आगे. अब एवरेज इनकम क्या होता है? एनी कंट्री, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवरेज इनकम? विच इज टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. देखो इसको ईज करने के लिए जस्ट ए मिनट हियर. सो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस. देखो अब दिस इज फाइन. सी जीडीपी पर कैपिटा. पर कैपिटा मीन्स व्हाट? जीडीपी इज द क्यूमुलेटिव ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट. हमने कंट्री का निकाला था, राइट. नाउ वी वांट कि ये कंट्री में एक पॉपुलेशन में एक आदमी और वन अडल्ट मेंबर हु इज अर्निंग, हाउ मच इज हिज इनकम? इट्स एन एवरेज, राइट. इट्स एन एवरेज. अब मैं बताता हूँ इसका रीजन भी क्या है एवरेज निकालने का. फॉर द टाइम यू अंडरस्टैंड, पर कैपिटा मीन्स द पर इंडिविजुअल. कैपिटा मीन्स पर इंडिविजुअल member, right. Students don't go to earn, right. Adults go, right. So इसलिए per capita. It's a measure of a country's economic output that accounts for a number of people. For its number of people. अब कैसे निकलते हैं? It divides the country's gross domestic product, means what? GDP. और GDP कैसे हमने निकाला था? Summation of all goods plus services divided by one financial year. In one financial year. Divided नहीं, in one financial year. So you got what? Your GDP. अब per capita income is also called what? Your average income. Is called what? Average income. For example, कि समझिए कि you produce X number of
X amount of money, your GDP is X amount, and your population is 10. So if you divide, what value you get will be your per capita income, right? इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे. समझो कि केक है, राइट, और आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? 4 फॉर एग्जाम्पल. तो इसको हम इसमें 4 इसमें डिवाइड करेंगे तो एवरी मेंबर इज अर्निंग हाउ मच, इज गेटिंग हाउ मच पीस, 1 क्वार्टर, राइट. अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान देना कि एक केक है आपके घर में, राइट. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 4. सो व्हाट वी डिड, वी डिवाइडेड इट इक्वली, सो एवरी पर्सन गेट्स व्हाट, 1 क्वार्टर, राइट. अब इसको एक ध्यान में रखना. अब वापस आते हैं इस पे, टाइमिंग के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं. अब देखो पर कैपिटा इनकम मीन्स व्हाट. अब ये रियल जीडीपी छोड़ देना, दैट्स मोर टेक्निकल. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पर कैपिटा मीन्स व्हाट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेड एज एवरेज इनकम, राइट. अब कैसे करते हैं? रियल जीडीपी भी छोड़ देना, जीडीपी अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. तो उससे हमको क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल एक्स इज द जीडीपी, पॉपुलेशन इज 10, तो व्हाट विल गेट, द वैल्यू इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. अब ये केक वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? आपके घर में केक है, 4 आदमी है, 4 मेंबर्स है, तो व्हाट यू डिड, यू डिवाइडेड इक्वली. तो एक केक था आपका जीडीपी, पॉपुलेशन कितना था? 4, उसको डिवाइड किया है, एवरीवन हाउ मच गेट इज दिस 1 क्वार्टर, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम. आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है. सो आई विल गिव यू क्विक 2 मिनट्स, राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आराम से टाइम लीजिए और इसको लिखिए, ठीक है. टेक योर टाइम, ब्रीद इजीली और इसको आराम से लिखिए. इफ इन केस फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं हो फिर पूछ लेना, और क्या वापस बता देंगे भाई और इसमें क्या है, ठीक है. बट मेक श्योर कि क्लियर हो जाए, राइट. इसको बार बार यूज करना है. सी ये पर कैपिटा इनकम, जीडीपी विल बी कमिंग बैक एवरी टाइम. सो आई विल बी रेफरिंग कि ये जीडीपी है, ये पर कैपिटा इनकम है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, राइट. पर कैपिटा इनकम इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज इनकम. सो आई विल गिव यू क्विक 2 मिनट्स. गो अहेड, राइट दिस इन पीस ऑफ पेपर एंड बी वेरी क्लियर, राइट. सो ये हथपस तो नहीं होना ज़्यादा, ठीक है. थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, ठीक है. चलो तो डू दिस, आई एम हियर. आराम से टाइम लीजिए और लिखिए. तो चलो, आई प्रिज्यूम यू मस्ट हैव रिटन समथिंग, राइट. सो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है. सो अब समझते इसका थ्योरी, राइट. तो कॉन्सेप्ट पार्ट इज क्लियर आई अज्यूम. नहीं है फिर से गो बैक, पॉज इट, अंडरस्टैंड इट, 2-3 बार देखिए फिर समझ में आ रहा है, डू लेट मी नो, राइट. ये केक वाला एग्जांपल समझना है, इसको बार बार हम यूज करेंगे, ठीक है. अब इसको करते हैं रब और इसको करते हैं जूम आउट और आते हैं यहाँ पे, राइट. अब देखियो, so for comparing countries income it is considered to be the most important attributes, ताकि हम उसको डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग है
या पुअर है एक्सेट्रा, हम उसको ये कर सके, सेग्रीगेट कर सके, राइट। अब आते हैं इसमें, एवरेज इनकम विच इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। क्या था वो? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री मीन्स व्हाट? जीडीपी इन वन फाइनेंशियल ईयर, राइट, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। 100 लिख दिया हूँ बाय डिफॉल्ट, सो इट्स पॉपुलेशन, राइट। तो जो मिलेगा हम उसको बोलेंगे एवरेज इनकम। सी एवरेज मतलब क्या? कुछ कंपेयर करना है, राइट, बेसिक मैथ्स है। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय हुम? वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का फंक्शन क्या है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक विल लर्न इन ग्लोबलाइजेशन। तो ये वर्ल्ड बैंक है, कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए व्हेन कम्स टू 1990s इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इन द नेम ऑफ एलपीजी। तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, एलपीजी, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय हुम? वर्ल्ड बैंक। रिलीज बाय हुम? वर्ल्ड बैंक। अब उसका कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रट्टा मत लगाना, बस समझना कि वो इस इनकम के बेस पे लोग कंट्रीज को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ डॉलर्स, देखो कितना? 12,236, इसको रट्टा नहीं लगाना है, समवेयर अराउंड 12,500 डॉलर्स जिस कंट्री का इनकम है। कौन सा है? पर कैपिटा इनकम। इज इट टॉकिंग अबाउट जीडीपी? नो, पर कैपिटा इनकम मीन्स व्हाट? एक अडल्ट वहां पे हाउ मच ही अर्न्स। अगर ही इज अर्निंग मोर देन $12,500, अभी $1 कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली इज समवेयर अराउंड 65 to 70, राइट। अब इसको डिवाइड कर लेना, राइट, तो मतलब मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बस थोड़ा सा यू शुड बी हैव अ रफ आइडिया। अब अगर ये 1000 होता भाई, थोड़ा छोड़ ही दो सब, बाकी सब 10,000 होता, समझो 1000 है, 1000 इफ यू मल्टीप्लाई बाय 70 हाउ मच यू गेट? कितना मिलता है भाई? इसके आगे 3 जीरो लगा देना, मैथ सिखाना पड़ रहा है भाई, देखो, और उसके आगे और एक जीरो लगा तो उतना उस कमाता होगा। सो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, वी आर कंसिडरिंग दिस, राइट। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? पर कैपिटा इनकम ऑफ डॉलर्स 12,000 या फिर समवेयर अराउंड 13,000 पर एनम, पर एनम मीन्स पर ईयर, एंड अबाउ इन 2016 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। रिच कंट्री के लिए क्राइटेरिया क्या है? विल ड्रॉप दिस। रिच कंट्री के लिए क्राइटेरिया क्या है? एक इंडिविजुअल in that country should earn more than $12,000. Second, in per annum. With those per capita income of less than or income of $1,000 or less than that, or even less than that or less, is called low income countries. Is called what? Low income countries. So देखो, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट रिलीज करता है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है भाई? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. This is irony, right? They are talking about development and they are gauging what? Only the income. So this is the irony, right? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे वर्ल्ड ग्रोथ रिपोर्ट आना चाहिए था, तो बस बात समझिए, होता है, they use the fancy words, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. अब कल वो बोलेंगे इफ दे आस्क यू कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में वी आर रैंकिंग मच बिहाइंड when comes to other countries, तो compare with this कि development doesn't mean only the economic aspect, it also means social, economical, political aspect as well, right? Economy is just one of the components, it's not the complete picture, right? ठीक है, अब इसको और बात में डिटेल में समझेंगे. अब दूसरा बात समझिए, अब जिस कंट्री का $12,000 से ज़्यादा होगा, 12K से ज़्यादा होगा, दे आर रिच. 1,000 से कम होगा उसको बोलेंगे लो इनकम ग्रुप. अब डू लेट मी नो वेयर डू इंडिया स्टैंड्स. बुक में दिया हुआ है, नोट कर लेना साइड में, राइट? वेयर डज इंडिया स्टैंड? डज इट कम इन रिच, डज इट कम इन लो? तो बता देना मुझे, ठीक है? चलो करते हैं रब. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब आगे बढ़ते हैं. अब चैलेंजेस. अब अगर आपने समझा हो कि जीडीपी क्या होता है, फिर पर कैपिटा इनकम, थोड़ा इसको ठीक से लिख लेते हैं, पर कैपिटा इनकम क्या होता है. तो बेसिकली लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस. हियर इज द व्हाट? टोटल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ particular country in one financial year. यहाँ पर कैपिटल इनकम क्या है? दिस टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ कंट्री, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन गेज कि डज दैट कंट्री बिलोंग्स टू रिच और पुअर. आर वी क्लियर विद दिस टू बेसिक थिंग्स, राइट? सो टेक योर टाइम, राइट,
and let me know what challenges do you think or you consider when it comes to the GDP or this aspect, right? Do let me know what are the challenges in this. I'll rub this and I'll give you 2 quick minutes, right? So write in a piece of paper what do you understand, what are the challenges, right? I'll rub this. You can use these images कुछ अगर if you are able to recall and let me know, right? तो लिखिए. Meanwhile I'll go from here, right? You take your time and write. So I assume if the concepts are clear, so you must have quickly catched कि what are the challenges, right? See, challenges by default is asked indirectly, right? तब ये काम आएगा. This is what it means concept clarity, right? चलो सबसे पहले चैलेंज क्या है GDP में? See, we are considering the total income, right? ये तो ठीक था क्योंकि ये फास्ट हो जाएगा. क्या हम एवरी हाउस होल्ड के घर पे आके पूछ रहे भाई हाउ मच आर यू अर्निंग? नहीं पूछ रहे ना. अगर पूछने भी चले जाए तो इट विल लेंथी प्रोसेस, राइट? बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और एक ईयर में तो नहीं निकल पाएगा, राइट? सो सबसे पहला चैलेंज क्या है? देखो व्हाट वी डिड इन पर कैपिटा इनकम, वी डिड सबसे पहले तो जीडीपी, राइट? अब जीडीपी में क्या होगा? सी, सबका वैल्यू इक्वल है. लाइक हाउ मच अंबानी का अर्न्स विल बी एडेड, हाउ मच सम पीपल लाइक, अब ये राधे भैया हमको याद होंगे, राइट? इज ही अर्निंग समथिंग? नो, बट फिर भी हम जो भी आएगा उनको ऐड करेंगे, फिर स्लम्स उनका ऐड करेंगे और बाद में विल टेक दी टोटल अमाउंट ऑफ जीडीपी और उसको डिवाइड करेंगे किससे? विल कंसिडर एज जीडीपी, विल कंसिडर एज जीडीपी एंड देन विल डिवाइड विद व्हाट? द टोटल पॉपुलेशन. अब इस टोटल पॉपुलेशन में कुछ ऐसे लोग भी थे ना, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कुछ कमाया नहीं, राइट? बट वी आर कंसिडरिंग द एवरेज. अब इसमें बात समझना है, व्हाट इज द पॉइंट हियर? अब जितना इन दोनों ने कमाया होगा उससे कहीं टाइम्स ज्यादा, मीन्स n times more is earned by whom? This man, अंबानी, राइट? बट जब हम उसको पर कैपिटा इनकम में डिवाइड करेंगे तो हिज अमाउंट इज स्प्लिट इक्वली अमंग्स एवरीवन. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कौन सा? केक वाला. अब याद करना, केक वाले कॉन्सेप्ट में व्हाट वी सेड कि आपके घर में ये केक लाया गया है, ठीक है? दिस इज द केक जिसको हम बोलेंगे जीडीपी. और पॉपुलेशन कितना है आपके घर की? 4 मेंबर्स आर देयर. वी डिवाइडेड इक्वली. अब जब इसको डिवाइड किया तो एवरीवन इज गेटिंग व्हाट? दिस पार्ट 1/4 और इसको हम बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड व्हाट? योर पर कैपिटा इनकम. अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पूरे जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका था, या फिर हु कंट्रीब्यूटेड एक्चुअली? योर फादर, और इन दैट केस योर मदर, राइट? जेंडर वाइज नहीं होंगे, राइट? सो एनीवन और इवन बोथ कैन अर्न, राइट? सो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल एग्जांपल कंसीडर करेंगे जहां पे ओनली फादर इज अर्निंग, बाकी 3 डिपेंडेंट है, 2 किड्स एंड योर मदर. सो ये तीनों ने कुछ काम किया था क्या? नो. एक्चुअली पैसा किसका है? योर फादर, बट ही डिवाइडेड इक्वली, तो हमें मिला पर कैपिटा इनकम. तो कैन मतलब इन ये जो बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने कुछ काम किया नहीं, बट स्टिल दे गेटिंग द पर कैपिटा इनकम. तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. ये रियल पिक्चर नहीं बताता हमें, राइट? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. तो ओनली अंबानीज मनी इफ इज अर्निंग मोर, स्टिल वी कैन से इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री, बट प्रैक्टिकली सबके पास उतना पैसा होगा क्या? नहीं. इज जस्ट एन एवरेज, राइट? रियल सिनेरियो इज डिफरेंट. तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, राइट? इसलिए कोई भी कंट्री को हम कंपेयर करें उसके मनी पे तो मेक श्योर कि द लास्ट मैन, हाउ मच इज द लास्ट मैन गेटिंग इट, राइट? चलो, ये चैलेंज आई गेस समझ में आया होगा. नहीं आया तो फिर से केक का एग्जांपल याद करना, विल बी थ्रू, राइट? सो हियर अंबानी इज अर्निंग फार मोर अहेड. समझो 1000 CR इज अर्निंग 0 एंड दे आर अर्निंग 10 रुपीज. टोटल कितना हुआ? 100, लाइक 1010 रुपीज, राइट? इसको समझेंगे तो बहुत जीरो में चल जाएगा. फिर समझो टाइमिंग के लिए इतना हमने आया, उसको डिवाइड करेंगे हम पॉपुलेशन से, तो कितने थे? 3. अब वैल्यू इक्वली डिवाइड होगा. समझो 100 है, दिस इज 100, टोटल इनकम इज 100, जहाँ पे ही इज अर्निंग 100, ही इज अर्निंग 0, ही इज अर्निंग 1. तो कितना हुआ? 101 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पीपल आर देयर? 3. तो तीनों को इक्वली मिलेगा, 1/3 1/3 1/3, राइट? बट एक्चुअली हु इज अर्निंग मोर? ही. बाकी लोग तो सब ऐसे बैठे थे ना. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, राइट? ये रियल पिक्चर नहीं दिखा था हमें. अब सेकंड, अब इसमें क्या होगा? हम अदर एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, राइट? सी, यहाँ पे स्लम्स भी है, यहाँ पे इकोनॉमिक भी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अर्बन डेवलपमेंट भी है. वी आर कंसिडरिंग ओनली द दिस पार्ट. इनका क्या? इनमें कुछ डेवलपमेंट हुआ? यहाँ इनकी
पहले 1 story बिल्डिंग थी, 2 story हुई, 3 story, 50 story, 60 story, they are touching the skies. Here they have the challenge for even the one roof over their head, right? So this is the disparity. Does it cater disparity? No. Economic disparity पढ़ा था हमने. Does it cater this? No. A big question mark. तो ये second challenge है. ठीक है? Are we clear? पॉज कर लेना और समझ लेना. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. अब देखो इनकम समझ लिया हमने, तो अब समझ में आ जाएगा इनकम मतलब बेसिकली क्या होगा. वी टॉकिंग ओनली अबाउट दी व्हाट, जीडीपी या फिर ग्रोथ या फिर पर कैपिटा इनकम. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो पर कैपिटा इनकम सिलेक्ट ऑन डिफरेंट स्टेट्स. फॉर एग्जांपल हरियाणा, केरला एंड बिहार. हरियाणा में कितना है समझो, इट्स फार मोर अहेड ऑफ केरला, और बिहार तो बहुत पीछे रह गए. ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या समझना है, यहाँ पे इशू क्या था, व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स मतलब क्या, पीछे वाला मूवी जाइए वापस और वो समझिए कौन सा, स्लम्स, राधे भैया, अंबानी, और फिर क्या था बाद में स्लम्स एक्सेट्रा. तो हमने यहाँ पे सिर्फ वो पैसा देखा, मतलब कि अगर हम इसको रब करें टाइमिंग के लिए और यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये फैक्टर देखे ना ऊपर वाले, जहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हमने इनको कंसिडर किया, यहाँ पे हैप्पीनेस कितना है, रूफ कितना है, नहीं, ओनली पैसा कहाँ से आ रहा है, बस वी आर डन. तो ये है जो अदर फैक्टर्स हमने इसमें कंसिडर नहीं किए. तो यहाँ पे सी दिस इज हाउ यू हैव टू काउंटर द आंसर्स एज वेल, कि हरियाणा के पास भले ही पैसा पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हो व्हेन कंपेयर्स टू केरला एक्सेट्रा, सिर्फ पैसा ज़्यादा है, और हमने पहले पढ़ा कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, राइट. तो बाकी फैक्टर्स का क्या, तो उसको समझते हैं. बाकी फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, देखो बाकी फैक्टर्स में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना यहाँ पे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स व्हाट, कि बिफोर अटेंडिंग 1 year, फर्स्ट ईयर, अ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year. ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1000 live births in that particular year. इसको बोलते हैं infant mortality rate. Before attaining the first birthday, how many die and why would they die? Understand? Nutrition, proper nutrition नहीं मिला होगा उनको, health, facilities, proper hospitals नहीं होंगे, right? Food नहीं होगा, water नहीं होगा, food, water, healthy water, etc. environment, ये सब कुछ फैक्टर आएगा वहाँ पे. ठीक है. सेकेंड, लिटरेसी रेट. आर दे एजुकेटेड? Education literacy is the different. Literacy rate means what? Any adult 7 years and above, if in read and write, is called literacy rate. Can we say he's employable? It's a challenge, right? Employment लेने के लिए you should be at least a graduate or a basic education. 7 years and above, if you can read and write, तो you are just called a literate. तो ये सेकंड, पर ये भी नहीं है, चैलेंज करो इंडिया में, दिस इज ऑल्सो नॉट 100%, वी आर अराउंड 76%. समझ में आया बात. अगर इसको हम ग्रेजुएट से लेना स्टार्ट कर दे कि हाउ मेनी पीपल आर ग्रेजुएट, तो नंबर विल ड्रास्टिकली फॉल. ठीक है. सेकंड, नेट अटेंडेंस रेशियो. इसको करते हैं रब. नेट अटेंडेंस रेशियो. नेट अटेंडेंस रेशियो मीन्स व्हाट, कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एज 14 to 15 years अटेंडिंग स्कूल्स, परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. मतलब कितने लोग एक्चुअल में स्कूल में एडमिशन ले लिया. चलो आरटी के अंदर राइट टू एजुकेशन वी हैव, राइट, अंडर आर्टिकल 21A, इतना तो याद होना चाहिए था अभी तक. ठीक है. तो इसके अंदर हमने कंपलसरी उनका एजुकेशन तो दे रहे, बट हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली अटेंडिंग इन रेगुलरली, कितने लोग रेगुलर है, तो उससे मालूम पड़ेगा ना एक्चुअल में क्या है. तो देखो अब इसको कंपेयर करेंगे, तो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो कितना है, 36 है. और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे केरला का नंबर कितना है, 12. ये बिहार तो यहाँ पे भी बहुत पीछे, पर यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, इट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल इन हरियाणा ऑफ व्हाट इज इन केरला. लिटरेसी रेट यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 94 है, तो इस मार्जिनल ये है. अब थोड़ा सा रब करेंगे, और नेट अटेंडेंस रेशियो में ड्रास्टिक डिफरेंस. देखो यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 83 है, अगेन डिफरेंस है. अब कंपेयर कैसे करना है, ऑफिस पीछे के स्लाइड में आएंगे. अब देखो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम में व्हाट वाज द डिफरेंस, यहाँ पे देखो वाज समवेयर अराउंड, इफ यू टेक रफली, तो समवेयर अराउंड कितना है, 13K. उससे ज़्यादा है क्या, नहीं, ओनली 13K, मतलब 13K का डिफरेंस था व्हेन कम्स टू मनी. अब यहाँ पे देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 3 times, राइट. तो इससे हमें मालूम पड़ता है अगर हम इनकम कंसीडर करें तो हरियाणा इज फार मोर अहेड ऑफ केरला, बट व्हेन कम्स टू सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स, केरला इज मच मोर अहेड. सो विच काइंड ऑफ स्टेट वी डू वांट. अब देखो ये जीडीपी ऑफ स्टेट कैसे निकालते हैं हम, जो जीडीपी हमने निकाला था नेशन का, उसको हम स्टेट जीडीपी भी निकाल सकते हैं, सेम एक्सपेक्ट, लाइक समेशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर स्टेट इन वन फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, उससे आ जाता है. तो इससे हमें क्या समझा कि मनी पर कैपिटा इनकम भले ही हरियाणा में ज़्यादा था, पर अदर एक्सपर्ट जो थे केरला में इज फार मोर बेटर. तो केरला इज इन मच फार मोर बेटर पोजिशन व्हेन कंपेयर्स टू हरियाणा. तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर द अदर थिंग्स. किसी को एग्जांपल दे दे कि जीडीपी ऑफ अमेरिका इज फार मोर अहेड व्हेन कंपेयर्स टू इंडिया, तो जस्टिफाई दिस. तो हाँ, भले उनके पास पैसा हमसे बहुत ज़्यादा हो भाई, कोई नो डाउट इन दैट, बट व्हाट आर द अदर एक्सपर्ट्स. वहाँ पे सुसाइड रेट ज़्यादा है, वहाँ पे डाइवर्स रेट, देखो वहाँ पे सुसाइड रेट इज हाई,
देन डाइवोर्स रेट इट हाई, देन हैप्पीनेस इज हाई। देखो हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है बोल के लोग सुसाइड कर रहे हैं ना, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, राइट, एक्सेट्रा। उसको करते हैं रब। दिस इज हाउ यू कंपेयर, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या होगा कि कोई भी कंट्री सोचे कि भाई अभी हम इसको कंसीडर करें, ये वाला फैक्टर को कंसीडर करें कि वो वाले फैक्टर को कंसीडर करें, जीडीपी वाले, राइट। तो विच फैक्टर डू वी कंसीडर, पर कैपिटा इनकम और दिस द अदर फैक्टर्स, इन्फ्लेशन मटेरियल एक्सेट्रा। तो कोई भी कंट्री के सामने क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच डेटा शुड वी कंसीडर। अब सरकार फंस जाएगी, राइट। तो ऐसा सिचुएशन होगा भाई, अब हम करें तो बोले क्या बोले, राइट। दिस इज बिग क्वेश्चन मार्क। तो करें क्या, तो इसका भी सोल्यूशन था, हाउ, सी, इसको हम बोलते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज। अब देखो इसके लिए एक रिपोर्ट आया था, उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसके पहले हम कुछ बेसिक फैक्टर समझते हैं जिसके बेस पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या होते हैं, तो इसके मिनट यार, हाँ, तो पब्लिक फैसिलिटीज देखो क्या होते हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे एनवायरनमेंट क्या हो, फीजिबल होना चाहिए, प्रॉपर स्कूल्स होने चाहिए, राइट टू एजुकेशन, राइट, फिर हेल्दी लाइफ, मेडिकल हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ये सब बेसिक फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आपको यूज करना इन इंट्रोडक्शन वाइल साइटिंग एनी आंसर, जस्टिफाई करने के लिए कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव लाइफ वेल, राइट। फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। फिर आएगा एनवायरमेंट, वेर यू लिव, वेर यू गो, जो प्रॉपर रोड्स एक्सेट्रा। अब देखो ये पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट है, राइट। ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर पोल्यूशन करोगे तो ये मिल जाएगा क्या आपको, कोरल्स आर लाइक ब्लीचिंग नाउ, राइट। ये जो चीज़ें हैं, एक मिनट को जूम करते हैं, see how beautiful it is, but now they are losing the colors because of what climate change, तो जिससे also will cater। तो अब समझते हैं पब्लिक फैसिलिटीज होते हैं क्या है। सो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, यू रिक्वायर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हाई हुआ तो विल यू एबल टू सर्वाइव, एस्थमा, लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एलर्जीज एक्सेट्रा विल बी देयर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट डिजीजेस, फॉर एग्जांपल व्हाट डज गवर्नमेंट डू, पोलियो के फ्री वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। फिर वो तो पेड है ना, बट गवर्नमेंट डज इट फॉर फ्री, व्हाट, फॉर अ मेजर हेल्थ। देखो नाइन्थ में भी लर्न इन इकोनॉमिक्स व्हाट, ह्यूमन एज एन रिसोर्स, तो उसको लिंक करना है, वो ह्यूमन फिट होना चाहिए, इसलिए हम पब्लिक फैसिलिटीज दे रहे हैं। देन एजुकेशन अंडर आरटी, देन हेल्थ फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यू एडमिटेड, अभी देखो कोरोना के अंदर भी एडमिटिंग देम फॉर फ्री, राइट, ताकि मेजर पॉपुलेशन का भला हो, वेलफेयर हो, राइट। देन ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए, हाउसिंग होनी चाहिए, राइट। एंड ट्रांसपोर्ट के लिए हु इज पेइंग द टैक्सेस फ्रॉम द रिच। तो दिस इज हाउ लाइक द साइकिल ऑफ एन इकोनॉमी वर्क्स, राइट। पब्लिक फैसिलिटीज में क्या आएगा, बेसिक थिंग्स फॉर सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन, ताकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी मेंटेन रहे, ठीक है। अब Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provisions for basic health and education facilities. Similarly, in some states, public distribution system means what, PDS हमने पढ़ा था, right? Wheat, grain, rice, 2 rupees, 3 rupees हम distribute करते हैं ताकि nutrition health cater हो, functions well. Health and nutrition status of a people of such states in certainly likely to be better. Why? Because हमने उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि उनको मिल सके, राइट। दे हैव अ चैलेंज फॉर पर कैपिटा इनकम उनका ज़्यादा नहीं है ना, राइट। इसलिए हमने बीपीएल कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि इनको हम कुछ ना कुछ बेसिक फैसिलिटीज दे सके, राइट। ह्यूमन दे आर, ताकि वो उनके विशियस साइकिल से बाहर निकले और वर्चुअल साइकिल की ओर चले जाए। तो पब्लिक फैसिलिटी समझ में आया हमको क्या है, दिस प्रोवाइडेड बाय होम, गवर्नमेंट। व्हाई, द मेन रीजन इज व्हाट, वेलफेयर, वेलफेयर, ओके गिव मी मिनट, इज व्हाट, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ होम, मासेस, इसलिए हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि सबका भला हो। आर वी क्लियर, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं रब। हाँ, अब देखो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर, दिस इज हाउ वी आर परफॉर्मिंग नाउ। सी फ्रॉम 1990 अब आ गया है 2018, ठीक है। 2020 देखो तो चले जाओगे यहाँ से उठ के, ठीक है। तो देखो हाउ ड्रास्टिक चेंज इज दिस, राइट, दिस ड्रास्टिक चेंज। अब देखो लॉकडाउन के बाद यू विल बी हैविंग न्यूज़ की यू कैन सी फ्रॉम पंजाब, लुधियाना, फ्रॉम लुधियाना से धौलाधर रेंज दिख रहे हैं। यमुना इज मोर प्योर नाउ, इज मोर हेल्दी, द स्टेटस, गंगा इज इंप्रूविंग द स्टेटस, राइट। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज वी ह्यूमन, वी आर द मेन रीजन फॉर दिस ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द पोटेंट लीथल फॉर एवरीवन सर्वाइवल, राइट। ये किसको नहीं, वोंट स्पेयर एनीवन, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इज इम्पैक्टिंग, और ये बढ़ते जा रहा है ऐसा ये ग्राफ। सो देयर इज अ हाई टाइम वी रिड्यूस दिस नाउ, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हमको हेल्दी एनवायरमेंट क्यों चाहिए नाउ, व्हाई दिस इज अ चैलेंज, ठीक है। इसको करते हैं रब और बढ़ते हैं आगे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जो थे वहाँ पे पाजी जो फंस गए थे कि अब करे तो क्या करे, उनके लिए बनाया गया है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं भाई, रिपोर्ट सेज दैट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लेट मी चेंज द कलर, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय होम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस अगेन, जिन्होंने क्या बनाया था, यूएन का ही क्या था वो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वहीं से आया व्हाट, यूएन ने रिलीज किया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नाउ व्हाट इट डज, इट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन दी अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन कौन से, एजुकेशन लेवल्स, बाद में हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। क्या क्या है भाई, एजुकेशन लेवल,
हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है, 3D। तो 3 डायमेंशन मतलब व्हाट डू अंडरस्टैंड, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा फिर? इस डेवलपमेंट और ये ग्रोथ। देखो यहीं पे इन्होंने डेवलपमेंट बोला है, ठीक है, और वहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट था, पर वो वर्ल्ड डेवलपमेंट वाज फॉर द जस्ट नेम सेक, राइट, वो एक्चुअली ग्रोथ था। नाउ HDI कम्स इन व्हाट? योर डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग मल्टीपल डायमेंशंस। अब हुआ क्लियर मल्टीपल डायमेंशंस क्या होता है, राइट? इसलिए ग्रोथ और इसमें बेसिक समझ आना चाहिए। अब देखो, दिस इज नॉट गिवन इन बुक, सो फोकस हियर कि हाउ वी कंपेयर दिस, ठीक है? जस्ट गिव मी मिनट हियर। हाँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए, नॉर्वे हमेशा टॉप करता है दैट लीवर साइड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नेबरिंग कंट्रीज में श्रीलंका इज फार मोर अहेड। देखो इंडिया ने इंप्रूव किया क्या? पहले 130 पे था और वापस आ गया 135 पे, अभी समवेयर वी अराउंड 131। तो देखो ये इंप्रूव होता रहता है, अप डाउन, द फैक्टर्स चेंज, द थिंग्स चेंज, बट व्हाट फॉर अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये फैक्टर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम, राइट? कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अ ह्यूमन इन अ पर्टिकुलर कंट्री हाउ मेनी ईयर्स ही लिव्स, कि मतलब 70 ईयर्स रह पाते हैं या फिर 25 ईयर्स रह पाते हैं, ठीक है? ये कैसे होगा? हेल्थ फैसिलिटी, स्ट्रेस कितना है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट प्लस बाहर वाला एनवायरनमेंट कैसा है, वाटर कैसा है, प्रॉपर फूड का एक्सेस है क्या, एक्सेट्रा। एजुकेशन मीन्स हाउ इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट, एक्सेट्रा। इनकम, इनकम वापस क्या है कि हाउ मच इज अर्निंग, पर कैपिटा इनकम क्या है। अब पर कैपिटा इनकम में PP मॉडल होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो देखते हैं अगर ये आपको होगा तो आई विल लेट यू नो, वरना विल स्किप दिस, राइट? इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वो जो पाजी वहाँ पे फंस गए थे कि भाई कौन सा फैक्टर हम लें, कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में वी आर कंसिडरिंग ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो बाकी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है व्हेन कम्स टू केरला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कौन सा फैक्टर हम कंसिडर करें? तो उनके लिए सोल्यूशन क्या था? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हु रिलीजेस दिस? रिलीज बाय UNDP, ठीक है? 3 फैक्टर्स में एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। चलो इतना क्लियर हुआ होगा, तो बढ़ते हैं हम आगे। नहीं हुआ क्लियर तो पॉज करके देख लेना, हाँ, ठीक है? चलो अब देखो ट्रेंड देखो। नाउ जस्टिफाई, कोई बोले कि जस्टिफाई करो कि श्रीलंका, 1 मिनट को उसको आगे चलते हैं हम। हाँ, ये जस्टिफाई करो मुझे, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, राइट? अभी थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, ठीक है? तो वी आर ऑलमोस्ट अराउंड समवेयर 48 मिनट्स, तो लाइक वी देयर इज अ कंस्ट्रेंट फॉर लाइक मेकिंग द वीडियो, राइट? 50-55 मिनट्स मैक्स इट कैन सर्वाइव। तो देखो मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको, पर आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉज करना है वीडियो को। 1 मिनट देना, यहाँ पे क्या करना है आपको? पॉज करना है वीडियो को और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या है कि जस्टिफाई हाउ श्रीलंका इज एबल टू परफॉर्म फार बेटर देन इंडिया। हाउ? जैसे कि 1 मिनट रुकना, जूम करें हम यहाँ पे, तो देखो ये बुक में दिया हुआ है कि, हाँ 1 मिनट, देखो श्रीलंका का रैंक कितना है? 73rd। इंडिया का कितना है? 131। सो हाउ श्रीलंका being despite a small country is able to perform far more better। अभी HDI stands for Human Development Index, about table etc. ऐसे per capita income is calculated, ये सब हमने। और life expectancy means what? birth denotes, name suggests that average expected life of a person in that country। समझो कि कोई इंडिया में एक आदमी born हुआ adult, infant mortality rate is for the kids, right? जो 1 year के पहले उनका डेथ हो जाता है, that's different। अब adults का life expectancy means what? if an adult is born, how many years he will survive in India, average, ठीक है? एवरेज कितना लगेगा? तो इंडिया में सम अराउंड 75, इट्स 72 एक्चुअली, एंड फॉर विमेन इट्स 75, ये 67 भी हुआ है। तो इट्स फ्लक्चुएटिंग, और ये इंप्रूव कब होगा? जब आपके पास प्रॉपर फैसिलिटेशन हो गए, हेल्थ प्रॉपर होगा, न्यूट्रिशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, मतलब यहाँ पे नहीं दे रहा, आपको पॉज करना है बिकॉज वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, और ये अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है? कि हाउ श्रीलंका इज एबल टू परफॉर्म बेटर। तो आई डायरेक्टली जंप टू द आंसर्स। देखो so, कैसे जस्टिफाई करना है आपको, इसके लिए हमें इसको जूम करना पड़ेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने लिखा होगा और फिर आप यहां होंगे आंसर देखने के लिए, ठीक है? अब देखो कुछ फैक्ट्स देखना है आपको। यहाँ पे देखो कि इंडिया कहाँ पे है, ये रहा इंडिया, ठीक है? सी द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। तो देखो भले ही स्लो है, भले ही स्लो है या फिर ग्रेजुअल है, बट वी आर प्रोग्रेसिंग, राइट? वी आर हेडिंग वेयर वी आर, राइट? ये ऐसे तो नहीं जा रहा ना कि एकदम ऐसे से चल रहा है, एकदम 0 है और ये 1 है और हम ऐसे ही चल रहे हैं, नहीं। वी आर इंप्रूविंग एवरी डे, एवरी ईयर, समझो। तो कंपेयर कैसे करेंगे? देखो इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर आप कंपेयर करना था तो व्हाट वुड यू रिटर्न? फर्स्ट कि इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है इस सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, अभी तो फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है? सेकेंड, लिटरेसी रेट इंडिया में पहले से कम था, ठीक है? लिटरेसी रेट इज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम था। सेकेंड कि हमारा जो कोऑर्डिनल बैकग्राउंड था, लूट के चले गए, कुछ पैसा नहीं छोड़ा हमारे लिए, ठीक है? तो ये सब कुछ चैलेंजेस थे। डिस्पाइट दिस ये पॉपुलेशन का बढ़ना एक्सेट्रा, इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल। इंडिया इस पे एम्पल फोकस करता है ताकि हम बाकी चीज पे फोकस दें। और इसका कैसे बोल सकते हैं हम भाई? देखो हमारा प्रोग्रेस दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हम प्रोग्रेस दिख रहा है यहाँ पे।
तो बेस्ट वे टू कंपेयर एनीवन इज टू कंपेयर हिज पास्ट, राइट। वो पहले कैसे था, अभी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि 8th में, ये तो उल्टा हो जाएगा आपके साथ, मतलब समझो 10th में आपको यू आर सॉरी 95, ये 12th में यू विल स्कोर अराउंड 90, तो आपका तो डिप होगा, राइट। पर प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता, राइट। आपका नॉलेज भी तो बढ़ेगा ना, तो ये पढ़ाई में उल्टा होता है, पर बाकी चीज़ों में ठीक है ना। मतलब समझो कि पहले आप 9th में यू वर भी, समझो 10th में यू वर आस्किंग फॉर ओनली मोबाइल फोन, नाउ यू आस्किंग फॉर स्मार्टफोन। जब 12th के बाद चले जाओगे तो यू विल बी आस्किंग समथिंग एल्स, राइट। तो आपके डिमांड्स बढ़ते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया भले ही स्लो परफॉर्म कर रहा है, अगर हम पास से कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको करें रब, अगर इंडिया का आप स्टेटस देखो 1920s में कहाँ पे थे, फिर देखो 1980s में कहाँ पे थे, अब 2015 देखो कहाँ पे थे, तो डायरेक्टली देयर इज एन इंक्रीज। समझो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 15 हुआ, तो वी आर इंक्रीजिंग, राइट, ग्रेजुअली। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरी कंट्री से हम नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज फैक्टर्स आर डिफरेंट फॉर एवरीवन, एवरी कंट्री द फैक्टर्स आर डिफरेंट, राइट। ठीक है, चलो, ये दिस वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप इसको ऐसे जस्टिफाई करोगे। सीबीएसई को आदत है ऐसे क्वेश्चंस पूछने की, तो मेक श्योर यू आर वेल वर्स्ड विद दिस, हाउ टू आंसर सच क्वेश्चंस। ठीक है, चलो करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये सब तो हो गया, लाइक वी अंडरस्टूड कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्या है, देखो कोई भी ऐसे आंसर लिखो तो यू शुड हैव समथिंग बेस जिससे आप आंसर स्टार्ट करो। तो व्हाट वी कैन राइट, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, मीन्स व्हाट, वी आर अंडर कंपल्शन, वी आर अंडर कंपल्शन, या फिर वी आर अंडर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ऑफ व्हाट, कि हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन व्हाट वी गिव दी, दिस इज अ लोन गिवन अस बाय आवर नेक्स्ट जनरेशन, तो वी गिव देम विथ लोन प्लस इंटरेस्ट, मतलब उनको प्रिजर्व करके दे। अब चैलेंज क्या हो रहा है, वी आर ओवर यूजिंग इट, वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग इट। जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होते जा रहा है दिन ब दिन, राइट, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अब दे हैव लिमिटेड, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लिमिटेड है ना ऑलरेडी, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोल इज लिमिटेड इन इंडिया, ठीक है। फिर फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, वो भी लिमिटेड है, बट वी आर ओवर यूजिंग इट, तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या करेंगे। फिर CO2 एमिशन हमने देखा अभी सर ड्रास्टिक बढ़ रहा है, राइट, द UN रिपोर्ट, IMA रिपोर्ट, राइट, 1990s में कहाँ था, अब कहाँ पे आ गए। अब ये एमिशन होने की वजह से क्या हो रहा है, हेल्दी एनवायरमेंट है क्या, नहीं। ऑल दिस इज लीडिंग टू व्हाट, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मीन्स व्हाट, द ग्लोबल टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर। अब इसका मतलब क्या होता है, 1.5 डिग्री तो ठीक है ना, पर अंडरस्टैंड ग्लोबल टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, राइट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इरेटिक रेनफॉल्स, महाराष्ट्र में कभी रेनफॉल नहीं हुआ था सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में, अब कभी भी रेनफॉल हो रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज द नीडेड नाउ, दैट वी कम टुगेदर लाइक दिस and we save the environment. This is the high time we come together and we are the last generation who can do anything for this. हमारा नौ जनरेशन तक तो हम पूरा एक्सप्लॉइट कर चुके होंगे इनको, राइट। नेक्स्ट जनरेशन विल बी लाइक ऑलमोस्ट 20 years लेटर, तब तक तो कुछ बचेगा नहीं, एक्सट्रीम सिचुएशन पे आ जाएंगे, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, वापस याद करो वो जो हमने दिखाया था आपको, पीपल, प्लैनेट, वो सब कुछ हमें करना है। कैसे, क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है किससे, हमारे आने वाले जनरेशन से, ना कि हमारे फोर फादर्स से। हमको उनको किसका देना है, विथ इंटरेस्ट एंड विथ लोन प्लस विथ प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, यू हैव टू गिव देम बैक। हाउ टू कंजर्व, कैसे करेंगे, समझो बात को, कैसे करेंगे, दिस इज द वे हाउ यू कैन डू दिस। अब देखो मतलब ये वे नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे कि स्टार्ट यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक स्टार्ट यूजिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, वर्क मोर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिजर्व द फॉरेस्ट, अफॉरेस्टेशन, या फिर प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है। फिर और सोचिए क्या होगा, फिर वो 5 R's, रीयूज, रिसाइकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमें करना है। फिर अवॉइड प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, ये सब हम कवर करेंगे आगे, पर टाइमिंग के लिए यू हैव टू स्विच फॉर दिस अदर अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे समझो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉस्ट ऑफ अडेप्टिंग द कोस्टल एरियाज राइजिंग, सी लेवल, वाटर लेवल राइज हो रहा है, उसके से फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ड्यू टू हीट, अब हीट इतना बढ़ रहा है कि कैन यू वर्क आउटसाइड, नो, देयर इज अ कैपेसिटी फॉर दिस। मोर वर्म टू गेन एक्सेस टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, देखिए मोर वॉर्स होंगे, वॉर फॉर वॉट, अगर एक ही एप्पल है, समझो एक ही एप्पल खाने वाला एप्पल, ठीक है, और एवरी कंट्री वांट दिस, तो एवरीवन लाइक देयर विल बी वॉर्स, राइट, टू गेट दिस, राइट। तो उसके लिए वॉर होना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक द कोल्ड वॉर एक्सेट्रा। रिसोर्सेज कम है इसलिए, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था, फॉर द कोलोनाइजेशन, राइट, सबको कैप्चर करना था, दैट वाज द रीजन। तो अभी रिसोर्स के लिए होगा, इनडायरेक्टली हो ही रहा है इन द नेम ऑफ ट्रेड वॉर एक्सेट्रा। फिर फ्रेश वाटर का सप्लाई कम होगा, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एवरीवन रिक्वायर्स। देन
श्रिंकिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्यों? एग्रीकल्चर में ड्रॉट्स आएंगे, फेमन आएगा तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा मीन्स क्या होगा? फूड क्वांटिटी कम होगा, फूड क्वांटिटी कम हो तो क्या होगा? इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन तो क्या होगा? आपका इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, हिटलर रिमेंबर उस टाइम पे हुआ था, लुइस 16 हैव फेस्ड दिस कॉन्सिक्वेंसेस, वैसा सेम वापस होगा, प्राइसेस ऑफ बेसिक फूड स्टफ एक्सेट्रा विल राइज, मतलब इन्फ्लेशन होगा, ठीक है? थोड़ा सा क्लियर करते हैं। फिर एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना लाइक व्हाट? वेदर चेंज, इरेटिक रेनफॉल्स, मानसून, फ्लड, सुनामी एक्सेट्रा। बाद में हायर टेम्परेचर रेंज, इसके से क्या होगा? ये टेम्परेचर हाई हुआ तो वी कैन लिव इन हाउस एंड यूज द एसीज, बट हाउ अबाउट बर्ड्स एक्सेट्रा, वो कहाँ पे जाएंगे? तो ये सब बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए वी रिक्वायर व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? जब हम ये सब चीज़ों को फोकस करेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड हैव एनी आइडिया, इसमें से कुछ 4-5 भी याद हो गए ना तो योर आंसर विल बी होलिस्टिक, डिटेल एंड यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है? तो उसको करते हैं हम रब, इसको आराम से लिख लेना क्योंकि ये वीडियो भी अबाउट टू स्टॉप, ठीक है? और कंक्लूजन में क्या लिखना है? सी दिस इज हाउ यू कंक्लूड, ये आपके बुक से लिया हुआ है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट द national or state boundaries. This issue is no longer a region or nation specific. Our future is interlinked or is linked together. जरूरत क्या है? We come together, we join our hands together और हम progressively इसके बारे में सोचने लिए आए। इसलिए like our honorable prime minister launched the international solar alliance, right? ताकि we switch to what? Solar energy with whom French, right? थोड़ा सा writing है for what? Solar energy, international solar alliance है, उसका headquarters कहाँ पे है? बताना, गुड़गांव में कहीं पे, ठीक है? तो वाई? वी टू स्विच फॉर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ताकि वी कैन रिड्यूस दी व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेट्रा। तो कॉन्सिक्वेंस में क्या लिखना है हमको? कंक्लूजन में क्या लिखना है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज नो लॉन्गर नेशन और स्टेट स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज लिंक्ड। मतलब यूएस नहीं बोले, यूएस से बोलेगा भाई हमको फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो हमारी इंडस्ट्रीज वैसे चलाएंगे, तो उनको बताना पड़ेगा भाई देखो अभी कोरोना वायरस है तो सब कुछ बंद हो गया, राइट? वाई? बिकॉज वी आर इंटरलिंक, किसी एक का इशू था, एवरीवन इज फेसिंग नाउ, तो यू हैव टू टेक कलेक्टिव स्टेप। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। सबके लिए नया है, वी वांट इनपुट्स फॉर एवरीवन सो दैट वी कैन थिंक, वी कैन कम टुगेदर एंड इनडायरेक्टली वी कैन वर्क फॉर अ बेटर टुमारो, अ बेटर वर्ल्ड, राइट? और इंडिया में तो देयर इज अ सेइंग एज वेल, राइट? वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, राइट? सो हम तो मोर प्रोग्रेसिव है। कल तक जो हैंडशेक के लिए मतलब बड़ी बड़ी बातें करते थे, नाउ दे आर सेइंग व्हाट? कि do namaste, right? So this is how our tradition is. We will revive our history. World we understand later on, but what is important कि our youth understand first what we have, right? What is our culture and how do you understand this? ठीक है? तो यही हमने कल्चर में देखा था पीछे चिपको मूवमेंट। वी आर far more ahead of consciousness when it comes to forest. ये अंग्रेज तो बाद में समझे थे ना, वो तो काटने चले गए थे। आप people come ahead and protect this, right? So now world is coming ahead कि भाई forestation दो। What they are doing indirectly reviving our history. So basically understand कि our history has the genesis far more ahead and we are far more ahead of the future. बट द फैक्ट इज योर कॉन्शियसनेस, आर यू एबल टू रिकग्नाइज दिस फैक्ट? या फिर वेस्ट ने ले गए वो एप्पल PSP के नाम पे, ठीक है? तो बाकी सब साइड में रखते हैं। अभी हमको क्या करना है? हमें एक कलेक्टिव एफर्ट रखना है। ये किसी एक का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। अगर इस पर हमने अभी काम नहीं किया तो विल फेस इट, राइट? चलो बैटरी का भी इशू आ रहा है, ठीक है? सो आई गेस विल स्टॉप हियर और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? सो इफ इन केस यू हैव एनी डाउट सो बता देना, कोई इशू नहीं है। कीप लर्निंग। So first of all, thanks for listening so patiently. So see you next time. All the best.